أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون.
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الأليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجه في ظلال على الأرائك متكئون
له فيها فاكهة وله فيها ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا له فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وله فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم। एक सूरह फातिहा की गुजारिश है मरहुमा हमीदा बानो बिनते सैयद हसन रज़ा साहब और इस ख़ानदान के जितने मरहुमीन हैं उनको याद करते हुए रहमल्लाहु यक़रा अल फ़ातिहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
अल्लाहुम्मा माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ा बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाह बिरहमतिहि वत्तदा बिस्सुखूरि मयदान अर्दिहि वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाबि अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। सुय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फिल अर्ज़ीन अल हुज्जत इब्निल हसन सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइना उलूमिक। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कुल्लु ऐनिन बाकिया यौमल क़यामा इल्ला ऐनुन बक्कत मिन ख़शियतिल्लाह व ऐनुन ग़ज़्ज़त मिन महारिमिल्लाह व ऐनुन बातत साहिरतन फ़ी सबीलिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, परवरदिगार का, उस माबूद का कि जिसने इस आलम हस्ती को पैदा किया। शुक्र अदा करते हैं उस पालने वाले का कि जिसने चंद नफसें दी, ये सांसें दी जिससे खुदा की तस्बीह और तहलील और इबादत की जा सके। शुक्र है उस माबूद का कि जिसने ये धड़कता हुआ दिल दिया, फ़िक्र करता हुआ दिमाग दिया, ये जिस्म के तमाम आज़ा सही और सालिम दिए। उस माबूद का एहसान, उस माबूद का शुक्र अदा करते हैं। उस खुदा का शुक्र है कि जिसने अपनी तमाम नेमतों को हम सबको दिया, हर नेमत हमें और आपको इनायत की। उस माबूद का शुक्र है कि जिसने माँ बाप जैसी इतनी बड़ी हमें नेमत से नवाजा। उस माबूद का शुक्र है कि जिसने भाई और बहन जैसे इस मोहब्बत के अनमोल रिश्ते को खल्क़ किया। उस खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जिस खुदा ने खुद यही कहा कि मैंने जिन्नो बशर को पैदा नहीं किया मगर ये कि मेरी इबादत करें। उस माबूद का शुक्र है कि जिसने हमारे लिए 14 हादी भेजे। उस माबूद का एहसान और करम है कि जिसने इस दुनिया में रहती दुनिया तक हमारे लिए एक हादी को हमेशा के लिए कायम रखा, कि जिसके सदक़े में आज ये दुनिया बाकी है, जिसके सदक़े में ये दुनिया आज कायम और दायम है, कि जब तक वो हादी हिदायत के लिए है तब तक ये दुनिया कायम है। उस माबूद का एहसान और करम है कि जिस माबूद ने ये 4 फसलें हमको दी, कि हर फसल अपने लिए परवरदिगार ने जो हमारे और आपके लिए पैदा किया, हर फसल अपने लिए एक जायका और मज़ा रखती है। उस माबूद का एहसान और करम है कि जिस परवरदिगार ने ये चंद साल की ज़िंदगियां हमें इनायत की हैं ताकि उसकी बंदगी करें और उसके बंदों में उसकी खिदमत हम कर सकें। एहसान और करम है उस माबूद का कि जिस माबूद ने, जिस परवरदिगार ने बाप और माँ जैसी नेमत हमें इनायत की,
कि इसका शुक्रिया हम अदा ही नहीं कर सकते। ये ऐसी नेमत है कि जिसके शुक्राने को परवरदिगार ने अपने शुक्राने से मिला दिया है। माँ बाप के शुक्राने को अपने शुक्राने के साथ ले आया है। परवरदिगार ने अपनी इताअत के बाद माँ बाप की इताअत का हुक्म दिया है। वही परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वही परवरदिगार कह रहा है, वक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन। वही परवरदिगार कहता नज़र आ रहा है कि अपने माँ बाप के साथ रहम दिली से पेश आओ, अपने माँ बाप का अदब और एहतराम करो। उसी खुदा का हम शुक्राना अदा करते हैं जिस माबूद ने हमें हर तरह की तालीम दी, हर अच्छी और बुरी चीज़ें हम लोगों को सिखाई और उनको सिखाने के लिए हमारे लिए मुअल्लिम भेजा। माँ और बाप ऐसी नेमत कि जिस नेमत के लिए मासूमीन की बेतहाशा हदीसें भरी पड़ी हैं। अहले बैत अताहर ने तरह तरह से अमली तौर पर भी करके दिखाया है। पैगंबर आज़म का वो जुमला अभी भी याद है कि जनाब रसूल खुदा कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर मेरी माँ, मैं अगर नमाज पढ़ रहा हूँ, अभी मैंने सूरे हम्द की तिलावत शुरू की हो, और मेरी माँ अगर दरवाज़े के पास आ जाए और आने के बाद मुझे आवाज़ दे, तो मैं मोहम्मद अरबी अपनी नमाज को तोड़कर अपनी माँ की आवाज़ पर लब्बैक कहूँगा। अल्लाह अकबर। क्या रुतबा है, क्या मर्तबा है माँ का और बाप का, कि ऐसी नेमत कि जिसकी कदर रहती दुनिया तक लोग कदर न कर ना सके। कहते जब नेमत छीन गई और छीनने के बाद अगर उसकी कदर की गई तो क्या फ़ायदा हुआ। बल्कि बारहा मैं इस जुमले को कहा करता हूँ कि अक्सर देखा गया है कि बहुत से औलादें हैं कि जब वालिदैन का इंतकाल हो जाता है तो उनके मरने के बाद बड़ी बड़ी देगें चढ़ाई जाती हैं, शिरमाले बनाई जाती हैं, कबाब बनाए जाते हैं, मुर्ग़ मुसल्लम बांटे जाते हैं, खैर व खैरात किए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं, नहीं मालूम क्या क्या खैर व खैरात किया जाता है। अच्छी चीज़ है, मरने के बाद करना बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं कि ज़िंदगी में जब वो ज़िंदा रहे तो उनके पास आप बैठ कर 4 बोल पे हर मोहब्बत के बोल सकें। जब वो ज़िंदा थे तो एक रोटी को तरसते रह गए, जब वो ज़िंदा थे तो एक लिबास को तरसते रह गए, जब वो ज़िंदा थे तो अपनी किसी ख्वाहिश को पूरी ना कर सके। मरने के बाद अगर किया तो क्या किया, फिर भी आप पर वाजिब है, मरने के बाद भी आप पर, यानी भुलाए नहीं जाते। लेकिन ज़िंदगी में अगर किया होता तो और बेहतर था कि जब माँ बाप तरसते हैं अपने बच्चों की मोहब्बतों को, तो उस वक्त हम अपने अहल व अयाल को लेकर दूर चले जाया करते हैं और माँ बाप की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते कि कोई कान और आँख हमारे आसरे में बैठा हुआ है कि टेलीफोन की एक घंटी बज जाए और माँ बाप दौड़ पड़ते हैं कि मेरे बच्चे ने या मेरी बच्ची ने फ़ोन किया है। आंखें दरवाजे को तका करती हैं कि मेरी औलाद आने वाली है। बहरहाल एक बूढ़ा इंसान बयान करते हैं कि एक शख्स के पास एक मोबाइल लेकर गया और कहता है कि ज़रा से बेटा ये देख लो मेरा मोबाइल ये सही है कि नहीं है, इस पे सब फ़ोन आ रहे हैं लेकिन एक फ़ोन नहीं आ रहा, देखो ये सही है तो नहीं है, क्या बात है, इस पर क्यों नहीं। फिर उसने देखा, देखने बाद कहा कि बाबा जान ये आपका मोबाइल तो बिल्कुल सही, इसमें कोई चीज़ कमी नहीं है, इसके खटके भी सही हैं, इसका कैमरा भी सही है, इसका सब कुछ सही है। कहा सब सही, लेकिन इसमें फिर मेरे बेटे का फ़ोन क्यों नहीं आता है। अगर ये सही है तो फिर मेरे बेटे का इस पर फ़ोन क्यों नहीं आता है। अल्लाह अकबर। ये मेरे अजीज़ों, ये दुनिया मकाफ़ात अमल है, जो करेगा इंसान वही सामने आएगा। ठीक अगर हम कमाने के लिए, रोज़ी के लिए, रिज़्क़ के लिए अगर दूर चले गए हैं तो दूर जाने के बाद भी माँ बाप को मत भूलो। कम से कम एक फ़ोन तो रोज़ वहाँ से कर सकते हैं हम आप। बहरहाल एक मैसेज आया था, बड़ा प्यारा मैसेज आया था। एक साहब कह रहे थे मैं अपने एक दोस्त के पास गया, देखिए ऐसी भी औलादें होती हैं, उनके पास गया तो जाकर, बहरहाल अक्सर शाम को जाकर बैठा करता था तो देखता था बैठ कर हिसाब किताब शाम को करते थे तो उसमें चंद हिस्सा लगाया करते थे। एक हिस्सा मसलन ये बीवी बच्चों को उसमें पैसे सलग किया करते थे, जब वो पूरा हफ्ता होता था हर हफ्ते में हिसाब किया करते थे और हिसाब करने के बाद उसमें पैसा अलग किया करते थे।
ये मसलन ये बीवी बच्चों का पैसा हो गया, ये फला साहब का हो गया, और एक हिस्सा लगाते थे ये मेरे माँ और बाप का हिस्सा हो गया। तो मैंने ताज्जुब से उनसे पूछा कि तुम्हारे माँ और बाप को मरे हुए तो बरसों गुजर गए, तुम्हारे माँ और बाप का हिस्सा इसमें कौन सा? वो तो बेचारे मर चुके हैं। कहा नहीं, तुमने इंसाफ नहीं किया, मेरे माँ बाप मर चुके हैं लेकिन मरने के बाद भी मेरे रिस्क में उनका हिस्सा है, क्योंकि उन्हें अपनी ज़िंदगी मेरे लिए फना कर दी थी। अब मरने के बाद और भी मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। ज़िंदगी में तो मैं उन्हें देता ही था, लेकिन अब वो ना रहे तो अब कौन उनको देगा, अब कौन उनका करने वाला है? ये मैं पैसा उनके नाम का अलग कर देता हूँ। अजीज़ों, तवज्जो करिएगा मेरे हर हर लफ्ज़ पे। ये मैं हर हफ्ते अपने माँ बाप के नाम से पैसे को अलग कर देता हूँ और इन पैसों से उनके लिए कार्य खैर और खैरात करता हूँ, उनके लिए नमाज़ें पढ़वाता हूँ, दुआएं करवाता हूँ, उनके लिए ज़ियारत करवाता हूँ, उनके लिए मज़ारात पे ज़ियारतें करवाता हूँ, मासूमीन के रोज़ों पर ज़ियारत करवाता हूँ। इस पैसे से उनके लिए मैं खैर करता हूँ, ये जो उनका हक़ है मैं उनको पहुँचाता हूँ। अल्लाह अकबर, काश ऐसी औलादें हो जाएं। मरने के बाद याद करना, आज तो औलादें ज़िंदगी में नहीं याद करती हैं। माँ बाप तरसा करते हैं चीज़ों को, अपनी औलाद के लिए हम सब कुछ खरीद के लिए आते हैं, लेकिन माँ और बाप के लिए हमारे पास जिस वक्त माँ बाप हमसे अगर कुछ कहते, अगर किसी माँ का या बाप का, अगर किसी का एक चश्मे का अगर शीशा भी खराब हो जाए, जिससे दिखाई उस पर क्रैश पड़ गए हो, निशान पड़ गए हो, तो अगर वो कहे बदल देते, कहते अभी आपको क्या ज़रूरत है, आपको कहाँ जाना है, आप इस चश्मे को क्यों इस्तेमाल करें, अभी कितना दिन हुआ है। लेकिन अगर वही बच्चा कह दे, अगर बीवी कह दे, तो एक से एक नई चीज़ें फ़ौरन हाजिर कर जाएंगी। लेकिन माँ और बाप करेंगे तो उसमें पूछा जाएगा कि आपको क्या ज़रूरत है, आप ये क्यों चाह रहे हैं। अल्लाह अकबर, काश वो बचपन अपना याद कर लिया होता, जब हमारी हर ज़िद पे जिस तरह अपनी आप औलाद की ज़िदें पूरी कर रहे हैं, उसी तरह से वो माँ बाप हमारी और आपकी ज़िदों को पूरा करा करते थे। हर ज़िद को हमारी पूरी करते थे, हर चीज़ लाकर हमें मुहैया कर देते थे, अपने आप को फना कर देते थे, अपने आप को मिटा देते थे, दिनों रात मेहनत करते थे। लेकिन अपने बच्चे के कह रहे हैं कि बर्थडे के ऊपर अगर उसने कह दिया मुझे ये चाहिए, तो कहते बाप और माँ फना कर देते थे अपने को जहमत करके कि मेरे बच्चे को उसके तवल्लुद पर, उसके विलादत पर मुझे ये चीज़ देना चाहे। जैसे ही चाहे कर्ज करके देना है, चाहे दिनों रात काम करके देना है, चाहे काम को बढ़ाकर मुझे काम करना है, लेकिन ये देना है अपने बच्चे को। क्या ये आज ये औलादें अपने माँ बाप के लिए सोचती हैं? मैं हर किसी से कह रहा हूँ, मेरी मुराद हर कोई है। ये अक्सर इस माशरे में पेश आ रहा है, ये हो रहा है। हम लोग मौलवी मौलाना, हम लोग पास अक्सर फ़ोन आते हैं, माँ बाप के शिकवे आया करते हैं कि मेरी औलाद ने मुझको इस तरह से कहा, मेरी औलाद ने मुझको ऐसे किया, मेरी औलाद ने मुझको घर से बाहर निकाल दिया, मेरी औलाद ने मेरे साथ ऐसा किया। ये क्या है? आया यही इस्लाम है? आया इसी को दीन फितरत कहते हैं? यही हमें इस्लाम सिखा रहा है? नहीं अजीज़ों, इस्लाम हमें सब कुछ सिखा रहा है, लेकिन हम सीखना नहीं चाह रहे हैं। जब अपनी ज़रूरत होती तो इंसान सब कुछ सीख लेता है। हर कौम में, हर मिल्लत में, चाहे जो मज़हब हो, चाहे जो धर्म हो, बुज़ुर्गों का, छोटों का, माँ बाप का अदब, एहतराम, इज़्ज़त हर मज़हब ने कहा है। अजीज़ों, इस नेमत की कद्र करो। ये नेमत जब छिन जाती है तब एहसास होता है। बहरहाल आज ये मरहुमा के तिमाही की मजलिस है, खुदा गरी के रहमत करे। ये उनकी खूबियाँ हैं, ये उनकी नेकियां हैं कि आज उन्हें याद किया जा रहा है इस मासूम की बारगाह में, इस सरज़मीन मशहदुल मुक़द्दस से आपको याद किया जा रहा है। ये वाक़ईन ये उनके लिए तोशे सफ़र, इससे बढ़कर और क्या होगा। ये मजलिसें, ये मातम, ये दुआएं, ये ज़ियारतें, जहाँ जहाँ पे रुकावटें होगी वहाँ वहाँ पे आगे बढ़ के उनके रास्तों को साफ़ करेंगी ये, क्योंकि बरज़ख का मरहला है, बड़ा सख्त मरहला है। इसलिए कहा जाता है जो जितना हो सके उनके लिए कार्य खैर और खैरात करे। ख़ास तौर से ये जो पहला साल है, ये सारा हिसाब व किताब का पूरा साल ही साल है। ये जब जिस वक्त इंतकाल होता उस रात से लेकर ये पूरा साल, पूरा हिसाब व किताब का साल है। इसमें उन्हें राहतें भी मिल सकती है, आराम भी मिल सकता है। ये हमारे और आपके हाथ में है कि उस घर का जो बेटा हो, उस घर का जो बाप हो, उस घर का जो शौहर हो, उस घर की जो बेटी हो, उस घर की जो माँ हो, बहन हो, भाई हो, भतीजे हो, सबको धीरे धीरे हमारे जहनों से निकलता चला जाता, हम भूल जाते। नहीं अजीज़ों, इन्हें कभी ना भूलो। माँ बाप की नेकियां हमेशा याद आती हैं, अच्छे लोग हमेशा याद किए जाते हैं।
इनके लिए जितना खैर हो सके उतना खैर और खैरात करें। नहीं किसी के पास, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा ही खैर, नहीं, कम से कम इस ज़बान से एक सलावात ही अगर उनके लिए भेज दी जाए तो वही काफ़ी हो जाएगी मरहूमीन के लिए। वो भी दुआएं देते हैं, माँ और बाप खुशहाल होते हैं, जनो शौहर खुशहाल होते हैं, भाई बहन खुशहाल होते हैं, ये जितनी अरवाहें सब खुशहाल होते, एक दूसरे के हक में दुआ करते हैं जब उनके लिए कोई कार्य खैर, कोई चीज़ उनके लिए इरसाल की जाती है। ये मेरे अजीज़ों, अगर आज हम करेंगे तो कल हमारे साथ भी किया जाएगा। ऐसा ना हो कि आज हम भूल जाएं कि कल हम भी भुला दिए जाएं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, माबूद का शुक्र अदा करते हैं कि जो लोग अपने गुजरे हुए लोगों को याद करते हैं, ये उनकी भी नेकियां होती हैं, उनकी भी खूबियां होती हैं जो उन्हें याद भी किया जाता है। बहरहाल जिस हदीस की मैंने तिलावत की है पैगंबर आज़म से, हदीस है कि जनाब रसूल खुदा फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जो है 3 आँखें ऐसी हैं जो वहाँ पर गिरिया नहीं करेंगी, हर आँख रोएगी, लेकिन 3 आँखें ऐसी होंगी जो वहाँ नहीं रोएंगी। वो कौन सी आँखें हैं? फरमाते पैगंबर आज़म की कुल्लु ऐनिन बाक़िया यौमल क़यामा। पैगंबर फरमाते हैं कि मेरे लाल जनाब ज़हरा से भी मुखातिब हैं और आप दूसरे बहरहाल आपके असहाब से भी हदीस उनके दरमियान भी आपने पढ़ी है। फरमाते हैं कि क़यामत के दिन 3 आँखें, कुल्लु ऐनिन बाक़िया यौमल क़यामा, हर आँख रोएगी क़यामत के दिन, इल्ला सलासत आयुन, लेकिन 3 आँखें ऐसी हैं जो क़यामत के दिन नहीं रोएंगी। सब आँखें रो रही होंगी लेकिन 3 आँखें क़यामत के दिन नहीं रोएंगी। पहली आँख कौन सी जो क़यामत में नहीं रोएगी, गिरिया नहीं करेगी? ऐनुन बक्कत मिन खशियतिल्लाह, कहते वो आँख जो खौफ खुदा में गिरिया करती है, परवरदिगार के खौफ में जो रोती है, वो आँख, सब आँखें रोएंगी लेकिन वो आँख वहाँ पर गिरिया नहीं करेगी। जो परवरदिगार के खौफ में कि माबूद, जो भी इंसान किसी ने कोई भी काम किया फ़ौरन खुदावंद आलम से तौबा इस्तिग़फ़ार करे, परवरदिगार मैंने ये गलत किया, या जानबूझकर किया है या मैंने अनजाने में किया है, माबूद तू मुझे माफ़ कर दे, खुदाया तू मुझे बख्श दे। वो करीम है, वो रहीम है, वो गफूर है, वो बख्शने वाला है, लेकिन हम मांगे तो सही उससे, क्योंकि खुदा खुद कह रहा है अदऊनी अस्तजिब लकुम, ये मेरे बंदे तू मुझसे मांग मैं तुझे इनायत करूँ, तू मुझसे दुआ कर, तू मुझसे कहे तो ज़रूर, खुदावंद आलम से कहे तो। देखिए खुदा कैसे इनायत करता है, कहते ऐनुन बक्कत मिन खशियतिल्लाह, वो आँख जो खौफ खुदा में गिरिया करती है, रोती है, सारी आँखें रोएंगी, क़यामत के दिन वो नहीं रोएगी। दूसरी आँख व ऐनुन गज़्ज़त मिन महारिमिल्लाह, अल्लाहु अकबर, वो आँख जो नामहरमों को देखने से अपने आप को बचाती होगी। कहते हैं अगर इंसान किसी नामहरम की तरफ निगाह करे तो अपनी निगाह को अगर मोड़ ले तो खुदावंद आलम उससे अपने गज़ब को मोड़ देगा, खुदावंद आलम उससे अपने कहर को दूर कर देगा। अगर वो महारिमुल्लाह से अगर अपनी निगाहों को अगर दूर कर दे, जो नामहरम है अगर उनकी तरफ निगाह करे, कहते एक निगाह बहरहाल अगर किसी पर पड़ गई कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी निगाह अगर मुड़ के इंसान ने देखा तो वो निगाह उसकी खुद निगाह नहीं बल्कि वो शैतान की निगाह है। वो निगाह उसकी वो कहते हैं वो ऐनुन, वो ऐसी आंख है कि सहमुन मिन सहाम शैतान, शैतान की निगाहों का वो तीर है जो दूसरी तरफ इंसान दूसरी मरतबा पलट कर देखता है। दूसरी आंख कौन नहीं रोगी क़यामत में? ऐनुन गज़्ज़त मिन महारिमिल्लाह, वो आंख जो नामहरमों को देखने के बाद अपनी आंख को बंद कर ले या उससे वहां हटा ले। तीसरी आंख व ऐनुन बातत साहिरतन फी सबीलिल्लाह, व ऐनुन बातत साहिरतन फी सबीलिल्लाह। तीसरी आंख कौन सी है? वो आंख है जो रातों को जगती है खुशनुदी खुदा में और गिरिया करती है। उस वक्त जब सारी आंखें सो रही होती हैं, ये बंदे खुदा, ये अल्लाह की बंदी, उस वक्त ये उठते हैं परवरदिगार की बारगाह में और उठने के बाद उसकी तस्बीह सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वरूह, उसकी तस्बीह करते हैं रातों को। खुदावंद आलम कहता है कि आसमान के दरीचों को खोल देता है, फरिश्तों को हुक्म करता है, देखो मेरा बंदा मुझसे क्या कह रहा है।
देखो मेरा बंदा मुझसे क्या तलब कर रहा है। कहते उस वक्त जब इंसान रातों को उठता है और उठने के बाद खुदा के जब इबादत में मशगूल होता है, नमाज है शब में मशगूल होता है, दुआओं में मशगूल होता है, अल्लाह से राज व नियाज करता है। कहते एक वक्त ऐसा है जो परवरदिगार आलम ने अपने बंदे को दिया है। एक रोज़े अरफा के लिए मिलता है, खुदावंद आलम ने इजाज़त दी है। यानी एक बड़ा कोई मिनिस्टर हो, कोई और बड़ा हो, कोई क्या हो, कि वो इजाज़त दी कि आज आप आकर मुझसे बातें करिए। यानी जब हिम्मत नहीं पड़ती आदमी किसी से बातें करने, या वक्त नहीं मिलता है, कहते वो जैसे रोज़े अरफा, उस दिन खुदावंद आलम कहता आ मेरे बंदे, आ मेरी बारगाह में, जो मुझसे चाहता है तू चाहे। खुदा उस वक्त कहते बंदे को पूरी अख्तियार दे देता है कि जो बातें करना तुझे कहे। उसी तरह कहते हर रात हर रोज़ खुदावंद आलम अपने अपने बंदे को जो है इजाज़त देता है, लेकिन बंदा उठे तो सही। कहते रातों को जिस वक्त बंदा खड़ा होकर अपने हाथ को उठाता है और खुदा से बातें करता है, परवरदिगार उसकी हर बात पर लब्बैक कहता है, हर बात पर लब्बैक कहता है। जनाब रसूल खुदा ने फरमा दिया है कि अगर इंसान इस तरह से अगर पेश आए तो खुदावंद आलम उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। अब जनाब रसूल खुदा ने एक जगह अब यह है कि इंसान में जब ये चीज़ें आ जाएंगी, जब इंसान में गिरियोजारी आ जाएगी, इंसान में महारिम से बचना शुरू कर देगा और इंसान हर तरह से बचना शुरू कर, तो उस वक्त फिर यहाँ कहते हैं जनाब रसूल खुदा ने भी फरमाया उस वक्त 3 तरह के इंसानों की तरफ तुम रुजू करना। जनाब रसूल खुदा ने फरमाया है कि जिसके अंदर ये 3 खसलतें तुम पाओ, तुम उसकी तरफ रुजू करो, तुम उसकी तरफ जाओ, उससे मेल जोल करो, उससे प्यार मोहब्बत करो, उससे बढ़ावा करो, उससे दोस्ती बढ़ाओ। ये 3 तरह के इंसान जो पैगंबर आज़म ने जो निशानी बताई है, अगर किसी में पाई जाती है तो तुम उससे दोस्ती करो, तुम उस पर एतमाद करो, तुम उस पर यकीन करो। वो कौन? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयता मिन अखीका सलासता खिसालिन फरजूहु। पैगंबर फरमाते जिस वक्त तुम अपने बिरादर दीनी में 3 ये चीज़ें, 3 खसलतें अगर पाओ तो उसकी तरफ रुजू करो, उससे मुराजिया करो, उससे दोस्ती करो, उसके आगे बढ़ो, उसके पास जाओ, जिसमें ये 3 चीज़ें पाई जाती हूँ, 3 सिफतें पाई जाती हूँ। कौन सी? पहली चीज़ अल हया, उसके अंदर हया पाई जाती है, बेहया ना हो, अपनी माँ और बहनों को बेपर्दा न फिराता हो, ना महरमों पे निगाहें न करता हो, हराम और हलाल का ख्याल करता हो। पहली चीज़ क्या? अल हया, जिसके अंदर हया पाई जाती हो उसकी तरफ तुम रुजू करो। दूसरी चीज़ क्या है? वल अमाना, दूसरी चीज़ जिसके अंदर अमानतदारी पाई जाती हो, अमीन हो, किसी की चीज़ अगर रखा दी गई तो अमानत के तौर पर उसको रखे रहे, किसी ने अपनी बात अगर उसको बता दी तो अमानत के तौर पर रखे, ना कि डंका पीटता रहे। अमीन हो, किसी पे ना तोहमत लगाए, ना चुगली करे, ना बोहतान करे, किसी के ऊपर ज़रा बराबर उंगली ना उठाए, अमीन हो इंसान। तीसरा इंसान कौन? वसिद्क़, सच्चा हो, सच बोलता हो, कभी झूठ ना बोले, झूठ ना बोले। पैगंबर फरमाते हैं अगर किसी बंदे मोमिन के अंदर ये तीनों सिफातें अगर पाई जाती हो तो मुझसे दोस्ती करो, उसकी तरफ रुजू करो, उसकी तरफ बढ़ जाओ। पहली चीज़ क्या थी? अल हया, दूसरी चीज़ वल अमाना, तीसरी चीज़ वल सिद्क़, सच्चा। अगर ये इंसान के अंदर एक चीज़ें पाई जा रही हैं तो उसकी तरफ इंसान रुजू करे। खुदावंद आलम ने इंसान को तमाम चीज़ें, हर चीज़ परवरदिगार ने इंसान के लिए बताई है, लेकिन अगर बंदा उस पर करता हुआ नजर आए तब है कमाल। मासूमीन ने भी जो चीज़ें बताई हैं अगर उसके ऊपर इंसान उस पर अमल करता नजर आए तब है इंसान का कमाल। क्योंकि इमाम सज्जाद बहुत सी हमारी ऐसी दुआएं, बाज़ मौके हम लोग दुआ भी करते हैं और गिरियोजारी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, रोते भी हैं, गिड़गिड़ाते भी हैं, नमाज शब भी पढ़ते, फिर भी हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। मासूमीन ने जिन चीज़ों को मना किया है उन चीज़ों का, जैसे पैगंबर ने फरमाया है कि क्या क्या चीज़ें इंसान में हो तो उसकी तरफ मिलना चाहिए, उसी तरह चौथे इमाम हमारे फरमाते हैं, मौला इमाम ज़ैनुलआबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरह। मौला फरमाते हैं कि बहरहाल हम लोग दुआ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हमारी दुआएं मुस्तजाब नहीं होती हैं। रोते भी हैं, गिड़गिड़ाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी दुआएं मुस्तजाब नहीं। तो उसकी वजह क्या है? यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें याददाश्त की कि इमाम ज़ैनुलआबिदीन सलाम फरमाते हैं कि 7 ऐसे गुनाह हैं जो इंसान की दुआओं को मुस्तजाब होने से रोक देते हैं। दुआ जाते जाते रुक जाती है, इस्तिजाबत के उस दरवाजे तक पहुँच जाती है लेकिन वापस चली जाती है। 7 ऐसे गुनाह हैं कि जिसकी वजह से इंसान की दुआएं रुक जाती हैं और रद्द हो जाती हैं।
पहली चीज़ मौला बताते हैं, वो क्या चीज़ है? मौला फरमाते हैं नीयत बद का होना। तर्जुमा ही, खाली आपके वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, तर्जुमा ही पेश करूँ वो काफ़ी होगा। नीयत बद का होना, या इंसान की अच्छी नीयत ना होना, बदनीयत जैसे कहा जाता है, बुरी नीयत होना इंसान की, नीयत में उसके इखलास नहीं है, नीयत में उसकी खोट है, तो मौला फरमाते हैं ये उसकी दुआ को मुस्तजाब होने से रोक देती है। दूसरी चीज़ मौला फरमाते हैं बातिन का नापाक होना, यानी ज़ाहिरन कुछ और होना, अंदर कुछ और होना, कि जिसको अपनी ज़बान में मुनाफिकत कह दी जाए। मौला फरमाते हैं इंसान की दुआ को इस्तिजाबत से, मुस्तजाब होने से रोक देती है। तीसरी चीज़ मौला फरमाते हैं दुआओं पर एतमाद न करना, यानी हम दुआ कर तो रहे हैं अल्लाह से, देगा या नहीं देगा, मौला के पास है, मौला देंगे या नहीं देंगे, नहीं भाई, इनके यहाँ देंगे नहीं देंगे होता ही नहीं है। इनके यहाँ आजमाइश नहीं की जाती कि चल के आजमाया जाए, इनके यहाँ यकीन है, यकीन है, इनके यहाँ पहुँचने के बाद यकीन रखते हुए दुआ करो। दुआ के शुरूत में से एक शर्तों में से एक शर्त यह है कि जब भी दुआ कीजिए उस पर यकीन हो कि हमें ये चीज़ मिलना है। कहते जब कहेंगे तो वो होगा इंशाअल्लाह। तो मौलाना क्या फरमाया कि दुआ पर एतमाद ना होना ये इंसान की दुआ को इस्तिजाबत से रोक देता है। चौथी चीज़ कहते हैं मौला फरमाते हैं कि मुनाफिकत ब बिरादर दीनी, जो दीनी भाई हैं, दोस्त हैं, यार हैं, उनसे मुनाफिकत करना, ज़ाहिरन मिलना, पीठ पीछे कुछ और कहना। ज़ाहिरन मिले, कहा बहुत अच्छे हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं, कह रहे बातिनन जब गए वो जा रहे हैं, ज़ाहिरन तो आपसे सलाम दुआ अलैक कर, लेकिन बातिनन जब जा रहे हैं उनकी तरफ इशारे किए जा रहे हैं, कनखियों से इशारे हो रहे हैं, हाथों से इशारे हो रहे हैं, तरह तरह से इशारे किए जा रहे हैं। ये मुनाफिकत है, ये ज़ाहिरी मोहब्बत नहीं है, इसको मुनाफिकत कहा जाता है। तो मौलाना का ये भी दुआ को इस्तिजाबत से रोक देता है। पांचवी चीज़ मौला फरमाते हैं कि नमाज है वाजिब को ताख़ीर से पढ़ना। अक्सर होता है गप्पों में लगे हुए हैं, बैठे टीवी देख रहे हैं, माँ बाप कहे जा रहे हैं, कोई बुलाया जा रहा है, सबसे कहा जा रहा है, नमाज के जैसे पढ़ के अम्मा अब्बा के ऊपर एहसान कर रहे हैं, नमाज पढ़ के जैसे अल्लाह के ऊपर माज़अल्लाह एहसान कर रहे हैं। ए भाई अपने लिए पढ़ रहे हो, डंडे वहाँ तुम्हें खाना है, ना तुम हमारी कब्र में आने वाले हो, ना इंशाअल्लाह हम तुम्हारी कब्र में आने वाले हैं। जिसका अमाल उसके साथ मरने के बाद कोई किसी को नहीं देख रहा है। हर चीज़ के लिए आदमी वक्त निकाल लेता है, लेकिन अल्लाह के लिए वक्त नहीं। फिर अल्लाह से शिकवा, अल्लाह तो मुझे नहीं दे रहा है, खैर बरकत तूने छीन ली, ज़िंदगी से आराम तूने छीन लिया है। अल्लाह को क्या दिया आपने? वो इबादत भी, वो भी अल्लाह के लिए, वो भी आपके लिए। माज़अल्लाह कोई अल्लाह के ज़ात पे एहसान नहीं कर रहे हैं, वो अपनी ज़ात पर हम एहसान कर रहे हैं कि जो इबादत का, अल्लाह को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है, हमारी जो इबादत है वो अल्लाह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसलिए कि बहाना खुदा के लिए है कि वो अपने बंदे को बख्श सके, अपने बंदे को माफ़ कर सके। ये नमाज़ें, ये इबादत एक शुक्राना है परवरदिगार के लिए। जितना उसका शुक्राना अदा किया उतनी नियामत बढ़ती चली जाएगी। कहते हैं दुआओं को मुस्तजाब ना होना, नमाज को अव्वल वक्त से ताख़ीर करना कि यहाँ तक कि नमाज कज़ा होने पे आ जाए। ये इंसान की दुआओं को इस्तिजाबत से रोक देते, ज़िंदगी की खैर बरकत भी छीन लेती है। ये चीज़ हर चीज़ को छीन लेती है। छठी चीज़ कहते हैं कि सिले अरहाम का बजा न लाना और सदका और खैरात न करना, ये आखिरी चीज़। यानी लोगों से, अपने अज़्ज़ो अक़ारिब, रिश्तेदार, जान पहचान वाले, भाई बहन, माँ बाप, हर किसी से न मिलना, ये इंसान के लिए कहा गया है कि ये सिले रहम न बजा लाना, सदका खैरात न करना, ये ज़िंदगी से चैन छीन लेता है, ये ज़िंदगी की बरकतों को छीन लेता है। सदका खैरात न करना, सिले अरहाम बजा न लाना, ये इंसान की उम्रों को भी कोताह कर देता है। सिले रहम बजा लाना लोगों में महबूब बनाता है, सदका देना बलाओं को टाल दिया करता है। आजमा कर देख लो, किसी भी काम के लिए मासूम की हदीस है, जिस काम के लिए तुम्हारा काम नहीं हो रहा है उसी काम की नियत करके थोड़ा थोड़ा दिन भर में कई मरतबा सदका निकालते जाओ, जितना तुम्हारी बिसात औकात है। मरीज़ी है, बीमारी है, रोज़ी है, आज़ारी है, नहीं मालूम क्या कौन सी मुश्किल आपकी है, नियत करो और आजमा कर देखो इसको। यकीन करो कि यानी खुद मैं भी इस चीज़ को आजमा चुका हूँ। जिस काम के लिए आपकी जो मुश्किल परेशानी जिस तरह की भी है, मुझे नहीं मालूम, उसकी आप नियत करके सदका निकालते जाओ। कुछ देर बाद, एक घंटे बाद सदका निकालते जाओ, देखो कैसे फटाक से काम होता है कि नहीं होता है। ये मेरे अजीज़ों, खुदावंद आलम ने हमें सारी रास्ते बताएं, सारी चीज़ें बताईं,
लेकिन काश अगर ये बंदा उस पर अमल करे। खुदा रहमत करे मरहुमा को कि जिनके साल सवाब की मजलिस है, आज तीसरे महीने की मजलिस है। बड़ी ही मोमिना, बड़ी ही नेक थी ये। खुदा इनकी कब्र पे नूर बारान करे, इनकी औलादों को, अहले खाना को सब्र इनायत करे। ख़ास तौर से आपके शौहर को कि जो बहुत ही नेक इंसान हैं, खुदा इन्हें सब्र इनायत करे और मरहुमा के दर्जात को बुलंद करे। माँ होती ही ऐसी है। बच्चे हर त्यौहार पे, जैसे भी बकरीद गई है, दूसरे त्यौहार गए हैं, ऐसे मौके पर बच्चे माँ बाप को बहुत याद किया करते हैं। बच्चों को माँ की याद ज़रूर आई होगी। इस मौके पर बच्चों ने ज़रूर याद किया होगा। एक और माँ है जिसे मदीने में याद किया जा रहा है, बच्चों ने याद किया। जब ईद आई तो याद आई माँ, जब बकरीद आई तो याद आई माँ। जब ईद आई तो वो मंजर याद आ गया कि खैयात तुम्हारे कपड़े लेकर आ रहे हैं। जब बकरीद आती थी तो बच्चों को याद आया करती थी। माँ और बाप की यादें हमेशा ताज़ा रहती हैं। कहते जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये मलका दो आलम, ये बीबी दो आलम ने मुसीबतें देखी हैं कि शहज़ादी के ज़बान पर जुमला आ गया है, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लिया लिया। हे मेरे बाबा, आपकी ज़हरा पर वो मुसीबतें टूटी हैं कि अगर वो दिनों पर पड़ते तो रात में तब्दील हो जाते। शहज़ादी कौनैन मलका दो आलम कि जिनका अक्सर 12 हदीसें नकल की गई हैं। पैगंबर ने फरमाया कि 3 आँखें हैं जो क़यामत में नहीं रोएंगी। पैगंबर एक जगह पर और कहते नज़र आ रहे हैं, शहज़ादी कौनैन बैठी हुई हैं, जनाब रसूल खुदा की आंखें अश्कबार हैं, इमाम हुसैन आपकी आगोश में हैं। फरमाते हैं, या फातिमा कुल्लु ऐनिन बाकिया यौमल क़यामा इल्ला ऐनुन बक्कत अलल हुसैन मुस्तबशिरतुन फिल आखिरा। ए मेरी लाल ज़हरा, क़यामत में हर आँख रोएगी, वो आँख गिरिया न करेगी जो दुनिया में तेरे फर्जंद हुसैन पर रो चुकी होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए मलका दो आलम हमारे पुरसे को कबूल करे, अपने फर्जंद हुसैन का पुरसा कबूल करें, सफ़ीर हुसैन का पुरसा कबूल करें। अभी अरफे के अय्याम गए हैं, याद आता है वो वक्त भी जिस वक्त इमाम हुसैन ने जनाब मुस्लिम को भेजा था, कूफे की तरफ रवाना किया था। कहते मुस्लिम जिस वक्त कूफे पहुँचे हैं, कहते बहुत से लोगों ने आपके हाथ पर बैत की थी, लेकिन जनाब मुस्लिम कहते वो वक्त भी आता है जब मस्जिद में मुड़ कर देखते हैं नमाज ख़त्म होती है, कहते हैं कि 2 सफ़े लगी हुई थी। कहते धीरे धीरे ये सफ़े भी ख़त्म होती गई। कहते जनाब मुस्लिम जब वहाँ से बाहर निकलते हैं, अल्लाह अकबर, मस्जिद से बाहर आते धीरे धीरे लोग कटते गए, बल्कि जनाब मुस्लिम को मशवरे देने लगे, मुस्लिम आप वापस चले जाइए। कहते जनाब मुस्लिम अब आगे बढ़े थे, जैसे जैसे तिराहे और चौराहे पड़ते थे मुस्लिम तक वो तन्हा हो गए। मुड़कर देखते कोई नज़र नहीं आता। एक मर्तबा आवाज़ देते, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। सलाम करें अपने आका इमाम हुसैन पर, उनके सफ़ीर जनाब मुस्लिम पर। धीरे धीरे मुहर्रम भी नज़दीक हो रहा है, जैसा कि मरहुमा के लिए बहरहाल मिलता है कि मरहुमा जब मुहर्रम नज़दीक होता था अपने अज़ा खाने को सजाती थी। बच्चों को भी बहुत याद आएगी। पहला मुहर्रम है जो माँ के बगैर किया जाएगा, वो माँ का आलम का सजाना, ताज़िए को ला कर रखना, हर हर पल की याद आएगी। खुदा रहमत नाजिल करे
याद तो करेंगे माँ को बच्चे, कम से कम माँ की याद आएगी। हुसैन के साथ साथ हमारी जाने कुर्बान हो हमारे मौला इमाम हुसैन पर। कहते सफीर हुसैन को कैद किया गया, मुस्लिम को कैद करके दरबार में लाया गया। मुस्लिम कहते हैं अगर हो सके तो मेरा ये कर्जा है, मेरी ये ज़रा ये चीज़ें हैं, इससे बेचकर मेरे कर्जे को अदा कर देना। फिर कहते हैं जनाब मुस्लिम फरमाते ख्वाहिश आपने की ताकीद की, कहते मेरे आका हुसैन इस वक्त निकल चुके हैं, अगर हो सके तो कोई जाकर कह देना कि यहाँ वापस ना आए। मुस्लिम पर दगा की गई, खुदा लानत करे उन मलऊनों पर जिन्होंने मुस्लिम पर जफा की। कहते जनाब मुस्लिम के जनाजे को दारुल इमारत से जमीन पर फेंका गया। कहते जिस वक्त अभी दारुल इमारत से जमीन की तरफ फेंका जाने लगा था, सर कलम होने वाला था। कहते अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। कहते एक मर्तबा आका हुसैन कहते रास्ते में रुक गए, कहते वालेकुम सलाम या अखी। जनाब अब्बास आगे बढ़े, क्या बात आका, किसके सलाम का जवाब दिया? कहते हुसैन फरमाते उंगली को उठाते अब्बास इनके दरमियान देखो। अब जो देखा मुस्लिम का जनाजा दारुल इमारत से जमीन पर फेंका जा चुका है, पैर में रस्सी बांध कर कशा कशा खींचा जा रहा है। अब्बास कहते आका मुझे इजाजत दे, मैं अपने भैया मुस्लिम की इमदाद को जाऊं। ए आका जिस तरह से आपने मुझे मुस्लिम की ज़ियारत करवाई है, मुझे कूफा पहुंचा दे। हुसैन कहते नहीं अब्बास, अभी तुम्हें करबला देखनी है, इससे बढ़कर मुसीबतें देखनी है। आगोश के पालों की लाशें उठाना है, आंखों के सामने अजीजों के जनाजे उठाना है तुम्हें। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदाए परवरदिगार पालने वाले हमारी इस अज़ा को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। परवरदिगार पालने वाले हम सब की जो मुश्किल गिरफ्तारियाँ उसे दूर कर दे। ये मेरे पालने वाले तुझे वास्ता देते हैं, जनाब मुस्लिम का तुझे वास्ता देते हैं, मलका दो आलम शहज़ादी कौनैन का तुझे वास्ता देते हैं, इमाम रज़ा गरीब का। परवरदिगार इस जगह पे बहरहाल इस वक्त जो हाथ तेरी बारगाह में उठे, इनकी जो शरई हाजत है उसे इनायत कर दे। खुदा जो मरीज़ बीमार होने सेहत इनायत कर दे। परवरदिगार जिनके दिलों में हज ज़ियारत की तमन्नाएँ हैं उन्हें इन बारगाहों में आना नसीब कर दे। परवरदिगार मरहुमा को करवट करवट चैन दे दे, इनके खानवादे को सब्र इनायत कर दे। परवरदिगार हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। खुदा या परवरदिगार हमारे गुनाहों को, तमाम कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। खुदाया हमें बख्श दे, हमारे वालिदैन को बख्श दे, हमारे आबा व अजदाद मरहुमीन को बख्श दे। परवरदिगार अहले बैत अताहर के सदक़े में, चार मासूमीन के सदक़े में मरहुमा के दर्जात को बुलंद से बुलंदतर कर दे। आखिर मिलते जाए एक मरतबा सूरह अलहम, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके मरहुमा हमीदा बानो बिनते सैयद हसन रज़ा साहब और इस ख़ानदान के जितने मरहुमीन हैं उन सब को याद करते हुए, जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात को याद करते हुए रहमल्लाहु यक़रा अल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मुमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमतज़ ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन
वअला अली इब्न हुसैन वअला औलादिल हुसैन वअला अस्हाबिल हुसैन खुसूसन सय्यदी व मौलाई अबा फ़ज़्ल अब्बास इब्न अमीरुल मुअमिनीन। अस्सलामु अलैकुम जमी शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका मौला या गरीबल गुरबा। अस्सलामु अलैका या मुईन अज़्ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा। अस्सलामु अलैका मौला या शम्स अश-शुमूस या अनीसन नुफूस अय्युहल मदफून बिअर्द तूस। अस्सलामु अलैका या सुल्तान अरब वल अजम। अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका मौला या साहिबल अस्र वज़्ज़मान। अस्सलामु अलैका मौला या खलीफतर रहमान या मज़हरल ईमान। अस्सलामु अलैका मौला या इमाम ज़मानिना हाज़ा। अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक व जअलना मिन अंसारिक व अवानिक। वस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।